Okay, today we'll start with the new chapter. Yes, we'll start with the new lesson, chemistry in everyday life. From this lesson, we'll do a very small part, chemistry in everyday life. Like first, we'll say here the first heading I can say here, method used for preservation of food. मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब अगर हमें फूड प्रिजर्व करना है, अगर हमें फूड प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करने पड़ेंगे. तो देयर आर टू मेथड. वन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. द वन इज फिजिकल मेथड of physical method of preservation. Now, which are the physical method of preservation? In the physical method of preservation, here we are having okay. Now, which is the physical method? The physical method of preservation of the food. मतलब food हम कैसे preserve कर सकते हैं? The food can be preserved by removal of heat. Heat remove करना है. और food can be preserved by addition of the heat. The heat करना है. और by removal of water. और the food can be preserved by using what? Irradiation. The potato देखो, potato के ऊपर अगर sprouting आता है तो sprouting कैसे कम कर सकते हैं? By using irradiation. Irradiating the food. The physical method of preservation of the food. The first one is what? By removal of heat. Heat remove करो. Second, by adding heat. उसे heat supply करो. By removal of water. Water remove करो अगर water रहेगा तो. And then by irradiation, मतलब radiation करो. Correct? Irradiating. ये हमारे physical methods है जो हम normally follow कर सकते हैं. Now they are given here chemical method of food preservation. The chemical method of food preservation are what? The first one is addition of sugar. Sugar add करो. फूड प्रिजर्व करने के लिए शुगर ऐड कर दो. फूड प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट ऐड कर दो. हम लोग पिकल वगैरह जब बनाते उसमें क्या ऐड करते? सॉल्ट ऐड करते. So addition of the chemical, addition of the sugar, addition of the salt, addition of vinegar, and addition of chemical. मतलब by adding the chemical also the food can be preserved. So food can be preserved by two methods: physical method of preservation and chemical method of preservation. Correct? हम लोग food इस तरह से preserve कर सकते हैं, either by using physical method or by using chemical method. Okay. Now I'll go for the next term. हमें यहाँ पे अलग अलग terms देखने हैं. The next term is what is antioxidant. What is antioxidant? 1 minute, I'll write down the definition. Yes. What is antioxidant? हम antioxidant किसे बोलते हैं? तो antioxidant is a substance. Antioxidant is a substance when added to food. मतलब अगर एंटीऑक्सीडेंट को अगर फूड में अगर ऐड करोगे तो क्या करेगा? रिटार्ड्स और स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ. मतलब हमारा जो फूड स्टफ है वो स्लो, मतलब जो उसका जो रिटार्डेशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा. मतलब कभी कभी क्या होता है कि फूड हमारा जल्दी खराब हो जाता है, तो जल्दी खराब नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं. हमारा फूड जल्दी खराब नहीं होना चाहिए इसलिए फूड के अंदर क्या ऐड करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ रिटार्डेशन. मतलब इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन. मतलब हमारा फूड स्टफ जल्दी खराब नहीं होगा और काफी टाइम तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. करेक्ट? तो अगर हमारा फूड स्टफ हमें प्रिजर्व करना है लॉन्गर टाइम के लिए
तो उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, इट विल रिटार्ड्स और स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ। एंड एग्जांपल, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, BHT। अभी मैं यहाँ पे BHT का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, खाली अगर BHT का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म भी है, लेकिन फुल फॉर्म अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट रिमेंबर एज अ BHT। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द BHT विल बी benzene ring with alternate double bond, and then we are having here OH, here we are having CH3, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे है CH3 3 टाइम्स। मतलब ये कार्बन को CH3 कितना टाइम्स अटैच करेगा, 3 टाइम्स, या यहाँ पे C उसे अटैच करेगा CH3 3 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे आपको नहीं लिखना है तो और कैसे लिख सकते हो, बेंजीन रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे लिखूंगा मैं CH3, ऐसे लिख सकते हो, या यहाँ पे CH3, ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका रहेगा, BHT। द एग्जाम्पल इज BHT, butylated hydroxytoluene. Butylated hydroxytoluene, but short form can be called as what, BHT। BHT, ये भी BHT, ये भी BHT है, ये भी BHT, दोनों सेम, करेक्ट। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हुआ। अब एंटीऑक्सीडेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग यस, हमें अभी नेक्स्ट मीनिंग क्या देखना है, व्हाट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, व्हाट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है ड्रग्स, मतलब मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, which give relief, the medicine which give relief from the pain, the medicine which give relief from the pain are called as analgesic। मतलब जो मेडिकल हमें पेन से रिलीफ देगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडेक हो रहा है या आपका अगर बॉडी पेन कर रहा है, तो उससे अगर आपको रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए आप जो भी टैबलेट्स या मेडिसिन ले लोगे, उसे हमें क्या बोलना है, एनाल्जेसिक। सो व्हाट इज एनाल्जेसिक्स, ड्रग विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। और उसका एग्जाम्पल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एस्पिरिन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या आएगा, बेंजीन रिंग with alternate double bond, and then here we'll write OCO। खाली आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, लर्न करने के मतलब कैसे आया हम लोग बाद में देखेंगे। CO, ये हमारा एस्पिरिन, दिस इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, एंड एस्पिरिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल salicylic acid, is also called as a acetyl salicylic acid, or very commonly it is called as a aspirin, हमारा पेन किलर एस्पिरिन। सेकेंड एग्जाम्पल जो गिवन ओवर हियर इज हमारा क्रोसिन टैबलेट, जिसके अंदर क्या होता है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन वी आर हैविंग अ बेंजीन रिंग with alternate double bond, and then here we'll have OH, and here we'll have NHCOCH3, OH, NO. So this is the formula for paracetamol. But just remember what is analgesic, the drug which gives relief from pain. The drug which give relief from pain are called as analgesic. Examples are aspirin,
And second example is paracetamol. Second example is what? Paracetamol. Okay. Next meaning we'll see. What is antipyretics? What is antipyretic? Antipyretics means what? Drugs which are used to reduce fever. हमारा fever कम करने के लिए. The drugs which are used to reduce the fever are called antipyretics. Are called as what? Antipyretics. So drugs which are used to reduce fever. The जो ड्रग फीवर रिड्यूस करने के लिए लिया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक. मतलब अगर आपको बुखार वगैरह आया है और अगर आपको बुखार को कम करना है तो उसके लिए आप जो भी मेडिसिन ले लोगे उसे क्या बोलना है हमें? एंटीपायरेटिक्स. सो व्हाट इज एंटीपायरेटिक्स? ड्रग्स विच आर यूज्ड to reduce the fever are called as antipyretics. Are called as antipyretic. Okay. Next meaning we'll see. What is antiseptic? Next meaning we'll see here. What is antiseptic? What is antiseptic? Antiseptic मतलब क्या? The drug which are applied on the living tissues. The जो ड्रग हम लिविंग टिश्यूज को हमारे स्किन के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे, the drugs which are applied on the living tissue to kill the bacteria. अगर बैक्टीरिया रहेंगे तो उनको किल करना है. एंड टू स्टॉप देयर ग्रोथ. अगर अगर ऑलरेडी बैक्टीरिया रहेंगे नहीं मतलब अगर है तो उनको किल करना है या उनका ग्रोथ स्टॉप करना है, उसे हमें क्या बोलना है? एंटीसेप्टिक. सो व्हाट इज एंटीसेप्टिक? द ड्रग विच आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज. जो ड्रग हम लोग लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एंड विच आर यूज टू किल द बैक्टीरिया एंड टू स्टॉप देयर ग्रोथ are called as antiseptic. Are called as what? Antiseptic. Okay. So drug which are applied on the living tissues to kill the bacteria or to stop their growth are called as antiseptic. What is the example of antiseptic here? Iodine is a powerful antiseptic. Iodine is powerful antiseptic. मतलब इसे आयोडीन यूज कर सकते हैं. देखो अगर हमें कुछ फॉर एग्जांपल जख्म वगैरह अगर हो गया तो हम आयोडीन रेड आयोडीन कर लगा. आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक. सेकेंड वन क्या है? अ डाइल्यूट aqueous solution of boric acid. A dilute aqueous solution of मतलब boric acid dissolved in water is a weak antiseptic used for the eyes. मतलब अगर हमारे आईज में अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो आईज में अगर इन्फेक्शन उसको निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है? बोरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज करना है. एंड बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक. बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक यूज फॉर द आईज. करेक्ट. बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक यूज फॉर द आईज. लोग यूज करते. ये हमारा एंटीसेप्टिक है. तो एंटीसेप्टिक के बाद नेक्स्ट मीनिंग हम देखेंगे यहाँ पे. दैट इज what is एंटीबायोटिक. हमें नेक्स्ट मीनिंग क्या देखना है यहाँ पे? व्हाट इज एंटीबायोटिक. I'll write down the definition. Okay, what is एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ?
और ड्रग डिराइव फ्रॉम दी, जो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होगा, देखो एंटीबायोटिक मतलब ड्रग मतलब मेडिसिन विच इज डिराइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कैसे बना हुआ रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ रहेगा, और इट मे बी प्योरली सिंथेटिक मतलब यह कंप्लीटली सिंथेटिक मतलब केमिकल से बना हुआ रहेगा। एंटीबायोटिक इज अ ड्रग डिराइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ रहेगा, या मे बी प्योरली सिंथेटिक रहेगा, बट विच इज यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है या कंप्लीटली सिंथेटिक है, बट विच इज यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म are called as what? Antibiotic. Are called as the antibiotic. An example of the antibiotic are penicillin, chloramphenicol, and salvarsan. The example of the antibiotic are penicillin, chloramphenicol, and salvarsan. Okay. हमने यहाँ पे कौन कौन से टर्म देखे, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे मीनिंग, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एंटीऑक्सीडेंट देखा था। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब द ड्रग सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ, मतलब अपना फूड खराब नहीं होना चाहिए उसके लिए जो सब्सटेंस यूज करोगे उसे हमें क्या बोलना है, एंटीऑक्सीडेंट। एग्जांपल क्या देखा था, BHT। एंटीऑक्सीडेंट के बाद क्या देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, एनाल्जेसिक देखा था। एनाल्जेसिक, व्हाट इज एनाल्जेसिक? ड्रग विच गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन, ड्रग्स विच गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। जो ड्रग हमें पेन से रिलीफ देगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक बोलेंगे। ओके। उसके बाद क्या देखा था, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या देखा था यहाँ पे, ड्रग विच आर यूज टू रिड्यूस द फीवर, जो ड्रग फीवर रिड्यूस करने का काम करेगा हमारा उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक। व्हाट इज एंटीसेप्टिक? ड्रग विच आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू, मतलब जो हमारे बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया और टू स्टॉप देयर ग्रोथ। देखो यहाँ पे डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग विच आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। और एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेटिक, बट दे आर आल्सो यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोनों में ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा मीनिंग है कि एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। और यहाँ पे एंटीबायोटिक में क्या है, which are obtained from the microorganism or which are obtained synthetically but which prevent the growth of the other microorganism, and examples are penicillin, chloramphenicol and salvarsan. So these are the examples. Okay. तो ये चैप्टर में से हम इतना ही कंटेंट करने वाले हैं, जो थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट चाहिए था। तो फ्रॉम दिस चैप्टर हमारा इतना ही कंटेंट रहेगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया अपना जो लास्ट एक चैप्टर बचा हुआ है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ये चैप्टर से आपको यही कंटेंट करना है, इतना ही कंटेंट करना है। ओके, यस, तो आई विल स्टॉप इट ओवर हियर।